ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہمسفر کہا جاتا ہے۔ اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے اور فیملی ممبر سے ہم بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے، ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں۔ ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں، ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں، کسی بندے سے کسی بات کو بری لگ گئی، سارا غصہ آ کر بندے نے اپنی جوزا پہ نکالنا ہے کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا، مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ ہماری جوجا کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، غور کیجئے۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا، وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے۔ تو ایسا نہ کریں۔ جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار، دعاؤں کی آپ کی خدمتگار ہے، آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں۔ اور نبی پاک کا کیا انداز تھا! میں تو آج اسلام کی شریعت کی اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ۔ نبی پاک نے اپنی جوجا کا نام لیا۔ پھر نبی پاک گھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے، کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے، محبت اور پیار کا اظہار فرماتے۔ سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر۔ کیا ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا۔ جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا، بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی۔ لوگ گروی رکھوا لیتے تھے اپنی بیوی کو۔ یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا، بیویوں کا حال تھا۔ اللہ اکبر! اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وشی معروف، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ، بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے، وظیفہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار۔ وہ چلا گیا۔ اچھا، ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے پاس حضرت ربیع بن صفی رحمت اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، اصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن شبی کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار۔ آئے ہائے، بڑوں کی بڑی بات ہے۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں، سور نو پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائیں گے۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن مستف رب انہو کافرہ جن سبحان اللہ۔ ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ رب انہو کان غفارہ، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، دے گا عطا، کیا فرمائے گا سما، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا، بنی جنت انارا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ کس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ بس اپنی زبان استغفار سے تب رکھیں۔ اچھا، پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں،
हंस भी रहे हैं, और अस्तगफुल्लाह किसी से माफी मांगते हुए हंसता है, क्या बंदा, अस्तगफुल्लाह रब्बी कुल जीत नहीं। या अल्लाह, मैं अपने सारे गुनाहों से तुझसे माफी मांग रहा हूं। किस बहुत सारे अस्तगफार के सीखे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़म कुल अज़म है, अल्लाह मैं तुझसे इस्तगफार करता हूं। वो रब जो बहुत अज़म है, अपने सारे बड़े गुनाहों से मैं इस्तगफार करता हूं। अलग 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 सीरों से अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करे। हो सके तो कभी गुनाह याद आए तो आंसू भी बह रहे हो, मगर ये इस्तगफार अल्लाह को बड़ा पसंद है, माफी रब को बहुत पसंद है। अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, पिछली कौमों में एक शख्स था, उसने बहुत गुनाह किए थे। एक बार उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा, गुनाहों के बारे में गौर फिक्र किया तो उसे शर्मिंदगी हुई। उसने लादिम और शर्मिंदा होकर 3 मर्तबा कहा, अल्लाह गुफा का, अल्लाह गुफा का, अल्लाह गुफा का। ए अल्लाह तेरी बख्शिश, ए अल्लाह तेरी बख्शिश, ए अल्लाह पाक तेरी बख्शिश। उसी लम्हे उसको मौत आ गई और अल्लाह पाक ने उसकी बख्शिश फरमा दी। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। अल्लाह का, अल्लाह का, अल्लाह का इस्तगफार करना, तौबा करना, गुनाह याद करके शर्मिंदा होना, ये अल्लाह को कितना पसंद है। एक सुभान अल्लाह इसके बारे में चंद बरकते आपको बयान करता हूं। बड़ी अजीम बरकत यह है कि इसकी बदौलत बंदे का तंगी और गम दूर हो जाता है। हदीस पाक में है, जो हमेशा इस्तगफार करता रहे, अल्लाह पाक उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है, हर फिक्रो गम से उसे खलासी अता फरमाता है। उसकी एक बरकत यह भी है कि ऐसे बंदे को अल्लाह पाक गैब से रिज़्क अता फरमाता है। हदीस पाक में है, इस्तगफार करने वाले को अल्लाह वहां से रिज़्क अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी तंगी है, लोग कर्ज में हैं, कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। अरे भाई, सबके पास जाते हो, रब के पास क्यों नहीं जाते? इस्तगफार करना शुरू कर दो। फरमाया, उधर से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा। इसकी बरकत से अल्लाह पाक दिलों के जंग को दूर फरमाता है। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह को माफी मांगना, दिल से पुकारना कितना पसंद है। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाकया बताता हूं, और ये वाकया है हजरत मूसा अल नबीना सलातो सलाम। अल्लाह पाक ने हजरत मसाला साद सलाम ने एक बार अपनी मुनाजात में अर्ज किया, या अल्लाह या रब। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, लबका या मूसा। आपने अर्ज किया, या अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू तो खालिक है, तू मैं तो तेरा बंदा हूं। इरशाद हुआ, मुझे ये पसंद है कि जब मुझे कोई मेरा बंदा या रब पुकारे तो मैं उसे लब्बैक कहकर जवाब दूंगा। अल्लाह फरमा रहा है, हजरत मूसा ने अर्ज किया, या रब, क्या ये हर मोती बंदे के लिए है? क्या हर नेक आदमी के लिए ऐसा है कि जब तुझे वो पुकारे तो तू लब्बैक फरमाता है? सुनो, अल्लाह फरमाता है, हाँ, बल्कि हर गुनाहगार बंदे के लिए भी है। तो हजरत मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह फरमा बरदार तो तेरी इताअत करता है। वो बात तो समझ आ रही है, गुनहगार पर ये करम किस वजह से है? आय हाय, सुनो मेरे रब कैसा करीम है। फरमाता है, मूसा, अगर मैं भलाई करने वाले को उसकी भलाई का बदला दूं और बुराई करने वाले पर उसकी बुराई की वजह से एहसान ना करूं, तो मेरा जूदो करम कहां जाएगा? है अल्लाह फरमाता है, मेरा फिर करम, मेरी रहमत किस लिए है? बुराई करने वाला भी, गुनाह करने वाला भी मुझे पुकारता है, मैं उसे भी लब कहकर जवाब देता हूं। हजरत मूसा नबी सलाम पे एक बार वही नाजिल हुई कि ए मूसा, फला इलाके में जाओ, हमारा एक नेक बंदा का इंतकाल हो गया है, जाके उसको गुस्सल दो, उसको कफन दो और उसका जनाजा। हजरत मूसा वहां पहुंच गए, और जब वहां जाकर आपने लोगों से कहा कि मुझे फला बंदे के पास ले जाओ जिसका इंतकाल हुआ है, मुझे गुस्ल देना है, कफन पढ़ना है, जनाजा पढ़ना है। लोगों ने कहा, हजरत, ये तो जमाने का गुनाहगार, बड़ा बेहुदा, बड़ा बदकार शख्स था, आपको रब का हुक्म था, आपने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, जनाजा भी पढ़ा, फिर रब की बारगाह में अर्ज की, मौला, बंदे तो ये कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा आदमी था,
तूने मुझे भेजा और फरमाया तेरा प्यारा बंदा मैंने जनाजा भी पढ़ दिया, गुस्ल और कफन भी दिया। फिर आप सोचें कि किसी का जनाजा हजरत मूसा पढ़ दे, उसकी तो बख्शिश का तो कोई मसला ही कोई नहीं ना। वो तो अल्लाह के नबी जिसका जनाजा पढ़े, गुस्ल दे तो या अल्लाह तूने ऐसा इंतजाम फरमा दिया। रब्बे करीम की तरफ से पता है क्या जवाब आता है। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा बंदे सच कहते हैं, ये बंदा वाकई बड़ा गुनाहगार था। जो इलाके वाले शहर के लोग कह रहे हैं ना ठीक कह रहे हैं, ये बंदा था ही ऐसा। अल्लाह जब इतना गुनाहगार तो इतनी बड़ी मेहरबानी किस वजह से। इरशाद हुआ, है मूसा इस बंदे ने मरने से पहले मुझसे 5 कलमात के जरिए बात की, मुनाजात की, मुझे पुकारा। 5 सेंटेंस थे, 5 कलमे थे, और ए मूसा इसकी वजह से मैंने उसकी मगफिरत फरमा दी। हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह वो 5 कलमे तो बता दे। वो 5 कैसे जुमले थे कि इलाके में सबसे मशहूर बदकार और उसका इंतकाल हो तो रब मग भी फरमाए और अपने नबी को फरमाए जाके जनाजा पढ़ो। तो आपने कहा, या अल्लाह वो 5 कलमात बता दे। आप जरा ये 5 कलमात सुनिएगा। एक्चुअली जो बात समझनी है ना, इस्तगफार है क्या, माफी मांगना है क्या, तौबा क्या है। अल्लाह फरमाता है ना कि हमने सुना कि जो बंदा अल्लाह से इस्तगफार करता है अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है। इसकी वजह यह है कि बंदा रब की बारगाह में अपने आप को सरेंडर करता है, अपने गुनाह याद करता है, अपनी अपनी कम मायगी का इजहार करता है। वो कहता है ना, अंदम तौबा शर्मिंदगी तौबा, शर्मिंदा हो जाए ना इंसान। दुनिया में पता है क्या मामला है, हम किसी अदालत में जाकर कह दे हमने जुर्म किया है, इकबाल जुर्म, ठीक, तो क्या होता है, जज कहता है फिर इसको गिरफ्तार करो और सजा सुनाओ। बंदा खुद ही मान रहा है, गवाहों की जरूरत क्या है। दुनिया की अदालत में इकबाल जुर्म पर सजा मिलती है, मेरे रब की रहमत की अदालत देखो। बंदा वहां जाकर इकबाल जुर्म कर ले, शर्मिंदा हो जाए, माफी मांग ले, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये फर्क है दुनिया वालों में और रब की अदालत में। सुभान अल्लाह। वो हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह वो 5 कलमे बता। वो बताए गए तो वो 5 कलमे सुनिएगा जरा। वो बंदा कहता है, मरने से पहले ए रब तू जानता है मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं, अगरचे खुद नेक नहीं हूं। या रब तू जानता है मैं फासिकों से बुझ रखता हूं, अगरचे मैं खुद फासिक हूं। समझ रहे हैं बात। ए अल्लाह नेकों से प्यार करता हूं, मुझे पता है मैं खुद नेक नहीं हूं। मैं गुनाहगारों से नफरत करता हूं, हालांकि मैं खुद भी गुनाहगार हूं। कहीं भी अपनी बढ़ाई नहीं है, मैं गुनाहगार, मैं बदकार, मगर अल्लाह मैं प्यार करता हूं नेक लोगों से। तीसरा जुमला क्या था, या रब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाएगी तो ए अल्लाह मैं तुझ फिर जन्नत का सवाल करना छोड़ दूं। मुझे ये पता है या अल्लाह तूने मुझे जन्नत में दाखिल किया ना, तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत बड़ी है। अब मुझे दाखिल भी करने से तेरा कुछ नहीं जाएगा, अगर कुछ जाता होता तो या अल्लाह मैं जन्नत तेरे से मांगना छोड़ देता। चौथा जुमला क्या है, ए रब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मुझे जहन्नुम में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाएगा तो मैं फिर जहन्नुम से पनाह नहीं मांगूंगा। यानी अगर तो तेरे मुल्क में तेरी शान में इजाफा हो रहा है, मुझे जहन्नुम में डालने से फिर तो मैं नहीं कहूंगा तुझे कि जहन्नुम से निकाल, मगर मुझे पता है तू पहले ही मालिक है, तू पहले ही खालिक है, सब कुछ तेरा है। मुझे जहन्नुम में डालने से तेरी कोई मिल्कियत में इजाफा नहीं होना। और आखिरी बात क्या कहता है, या रब अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर कौन करेगा। है अल्लाह फरमाता है, ए मूसा मैंने उस पर रहम किया, ये मेरे कर्म के लायक था, मेरे कर्म के लायक नहीं था कि मैं उसे नाकाम लौटा देता। जब इसने कलमात कहे तो मैंने इसे दरगुजर फरमाया, इसकी मगफिरत फरमा दी और मैं ही बख्शने वाला मेहरबान। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज वो काम सीख के जाना है
समझ के जाना है जिसको जो बंदा करता है तो रब की रहमत गोया मुस्कुराती है। अब वो ये है कि अल्लाह से माफी मांगते, इस्तगफार करते रहें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहें, अपने गुनाहों पर नदामत रखें। ये जो माफी मांगता है ना, अल्लाह उसे बहुत पसंद फरमाता है। हदीस पाक में आता है, अम्बी कमला गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अच्छा, अब एक और बहुत प्यारा अमल जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। वही मैंने तफसील बताई कि अल्लाह की रहमत राजी हो जाती है और अल्लाह की रहमत बरसती है, रब राजी हो जाता है। नबी पाक सलातो सलाम ने फरमाया, 3 बंदे हैं, अल्लाह पाक उन्हें देखकर मुस्कुराता और क्या होता है, फरमाया और बहुत खुश होता है। अब वो 3 बंदे कौन से हैं? चेक करने उनमें है कि नहीं। फरमाया, नंबर 1 वो बंदा जो रात को उठे, बिस्तर छोड़े, अच्छी तरह वजू करे, फिर नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए। उसे देखकर अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों बताओ मेरे बंदे को नेकी पर किसने उकसाया है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है, हाँ मैं जानता हूं, मगर तुम मुझे बताओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मालिक करीम, तूने इसे एक चीज यानी जहन्नुम का खौफ दिया है, ये उससे डरता है। ए अल्लाह, तूने इसे उसको एक चीज जन्नत की उम्मीद दिलाई है, ये उसकी उम्मीद रखता है। ए अल्लाह, यही खौफ और उम्मीद है जिसने इसे रात की नींद कुर्बान करके तेरे हुजूर खड़े होने पर उबारा है। अब अल्लाह पाक फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ कि जिस चीज से डरता है यानी जहन्नुम से डरता है, मैंने अपने इस बंदे को उससे अमन और अमन बख्शा, और जिसकी उम्मीद रखता है यानी जन्नत की, मैंने जन्नत इस पर वाजिब कर दी है। रात उठकर जब दुनिया सोई हो, बंदा उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करे, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए, अल्लाह फरिश्तों के सामने गोया फक्र फरमाता है। दूसरे नंबर पर सुनो, फरमाया, दूसरा वो शख्स जो हक को बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा यहां तक कि शहीद हो गया, या अल्लाह पाक ने उसे फतह अता फरमाई। अल्लाह उस बंदे को देखकर भी मुस्कुराता है। जिहाद करने वाले मुजाहिदीन या तो शहीद हो जाए या गाजी होकर लौटे अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की रहमत उन पर भी क्षमा छमम बरसती है। और तीसरे नंबर पर फरमाया, तीसरा वो बंदा जो रात को सफर करता है, यहां तक कि रात के आखिरी हिस्से में जब कहीं ठहरता है तो उसके साथ वाले सो जाते हैं, मगर वो खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगता है। उस बंदे को देखकर भी अल्लाह पाक मुस्कुराता है। इत्माई इबादत के बड़े फायदे हैं। इज्तिमा में आना, महफिल में आना, दुआ में शिरकत करना बहुत अच्छी बात है, मगर अपनी आदत ऐसे भी बनाएं कि कुछ इबादतें ऐसी करे कि मैं जानूं और रब जा। ये जो रात उठकर दुआ का लुत्फ है, रात उठकर जो नमाज पढ़ने का लुत्फ है ना, है जब सारी दुनिया सो रही है और बंदा अपने रब की बारगाह में हाजिर है। उल्मा कहते हैं, दिन के नवाफिल के मुकाबले में रात के नवाफिल अफजल है, क्योंकि रात सुकून होता है, रात रिक्कते कल्वी मिलती है। सुभान अल्लाह, रहमत इलाही क्षमा जब बरसती है। हमें क्या करना है कि रात तहज्जुद की नमाज की आदत डाले। रमजान में बन गई थी, सारी के लिए उठते थे तो लोग तहज्जुद पढ़ते, अल्लाह करे कि ये आदत बन जाए। कभी कभी, अगर हर रोज नहीं हो सकता, कम से कम कभी कभी करें। अच्छा, अगर ऐसी कोई इबादत हो भी जाए ना तो सबको बताएं, ना कि रात उठा था तो जनाब दुआएं भी की तो आंसू भी बहाए नहीं। कभी कभी ऐसा किया करो कि मैं जानूं और रब जाने। अल्लाह से बातें किया, मैं आपको सही बताऊं, आप मुझे एक बात बताएं। ये तो आपने सुन भी लिया कि अल्लाह की रहमत किस कदर बरसती है उस पर। जिंदगी में भी जब कभी हम परेशान हों और रात नींद ना आए, कभी कभी ऐसा होता है परेशानी में नींद नहीं आती, करवटें बदल रहा होता इंसान, और उस करवट बदलते बदलते में आपकी जब वालदा हयात होगी, या माशाअल्लाह जिनके पास माँ मौजूद है, माँ जैसी हस्ती कहाँ मिलती है। एक बार और सुन लो, दुनिया की बहुत सारी चीजें मेरे और आपके पास है जो रिप्लेसेबल है, जो बदली जा सकती है। मोबाइल फोन लेते हैं, बड़ी खुशी से लेते हैं, मगर नया मॉडल आता है तो लोग बदल देते हैं।
सवारी लेते हैं, बड़ी खुशी होती है, मगर जब नई सवारी आती है तो रिप्लेस बदल देते हैं। मॉडल नया आ गया भाई, अब वो पुरानी लगती है। मगर याद रखो, माँ बाप चले जाए ना, उसके बाद माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। उनका कोई नया वर्जन या नया मॉडल नहीं है तो इनकी कदर कर लो, इनकी दुआएं ले लो। है तो बहरहाल, अब कभी कभी तकलीफ में ऐसा हुआ हो कि रात को नींद ना आई हो, बेकरार होकर मां के पास गया, आंखों में आंसू लेकर के, मां मैं परेशान हूं, बीमार हूं, या कर्जे में हूं, या खला प्रॉब्लम है। मां ने क्या किया था, करवट बदल कर सो गई थी कि बेटा तू जान तेरा काम जाने, या मां खुद भी बेदार हो गई, सीने लगाया और दुआ करना शुरू कर दी। पर हम रोए तो मां भी रोएगी, ये है ना मां। मेरी तकलीफ, ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी ये फैसला करना मुश्किल होता था कि तकलीफ मुझे ज्यादा होती है, मेरी तकलीफ